Yes, no, maybe. Visible, right? Okay. So first thing first, make a page by the name register.jsx and make a CSS file for the same, correct? Okay. So JSX तो बना दिया. Go to pages and also make a register.css, correct? And add this CSS to the okay, makes sense. Now, how many text boxes do I have to add? Let's say if I'm adding a product, let's say ID will be auto-generated. Let's say title, price, description, category, image. Let me take these 5 things first. Which all? So I need how many? I mean, need how many text boxes? Yes, I need text boxes for input type equals to text. So this is for title. One second again. Next one. I'll add like this 5 text boxes for each for the title, price, description, category, and image. So input type is text. What else do we have? Before that, we'll have a label for that. So let's take that from here. Okay. So let's make a form control first. Let's make a, for this text box will be inside a form. So form and form closes. Then for each set of text boxes, I'll have a div. In that div, I'll have a label for that text box and I'll have the input box also. So one div in the form, each div will have a label and a text box. Okay. So like this. You all see my screen? So label and input type is text for which entity attribute title. So that should be the name of the text box. So input type is text, name equals to, they should match with the entity. They should match with the entity attribute. Okay. And you can use the same for ID also. And now the label. So for the label we have HTML for, this should match with the name, right? Or with the ID. HTML for match should match with the ID or name. And give the label over here. Product type. Make sense? So one div I made for the title. It is having the label and having the input text box. Now, like this, I mean, how many divs will I have like this? And come on now, let's prepare them. Title next would be this should match same to same, case by case.
Third, next, and okay. So let's try to see step by step. So this is step one. Create the text boxes. Input type is title, price, description, category, and image. And then we'll have the two buttons. After this div, we'll have one. Now when I click on submit, what happens? फॉर्म का ये ट्रिगर हो जाता है, कौन सा? ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर। तो उस पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा? उसका CSS के लिए which class? These are all from the bootstrap. Okay, so right now I've made a form. So let's directly route. Okay, have we done the routing, right? So register is which endpoint? Slash register. And in the nav bar, we have a URL for register, right? Correct? So do a save all and check if it is working. Okay, and all of them, they have been imported, right? Yeah. So let's start this one. So when I click on register, the register page should have loaded. We'll check what is the problem. Handle submit is not defined at register. At register, why did we say handle submit? Okay, this is not, this function is not written, right? Okay, so now this form opens up, asking for the product title, price, description, category, and image URL. So if I enter some values over here,
I'll populate these values from here. Okay, blah blah blah, and then I click on register. What should happen? This data should be sent to the backend API. So now what I'll do is whatever I am entering over here, I'll make an object. Because see, the backend wants an object. This wants a of type. So that object which I will be sending should have these keys: title, price, description, category, image, right? So here also I'll have to make an object over here with the same thing. And do the JavaScript object, the key has a double quotes? No, JavaScript object does not have. So let's come to this step. So this step all good. Now right, submit. Okay, by default it performs some operation. So if you want to override those operations, right, prevent default. So every handler event, every handler method has an event as an argument, right? Whether you write over here or you don't write, every handler method gets what as a parameter? Event. So we'll prevent the default event handling for the submit, and then we will put an alert over here, form submitted. So if I just click on this button right now, will behave like form submitted. Okay, this code is executed, right? What I have given over here. So I've just given some dummy code for that event handler. So step 2 done. Step 3, create the product object which you want to send. So let's create our object. So this should match with the entity. So this should match with this, all this. But as we know that a JavaScript object does not have a and will give empty values. Okay, made an empty object. Now make a state object out of this product. Product comma. And default value will get from where? Okay. So done with this step, done with this step, made a state variable. So far so good. Now whatever changes happens in these text boxes, I should populate this product object. So now what is there in the title of this product object, the state object? What is there in the title? If I go in this text box and I type over here whatever A, where should this A go to? The title of that product. If I type AP, so whatever I type in these text boxes, whose state should change? This state should change, and this is a object. So if I type in this text box, the title should change of the product. If I type in this text box, what should change? Price of which object? Product object. So now what I'll do is I'll use the on change event. Which event?
and whatever changes happens in the text boxes should reflect where in this product object, because eventually this object is going to be posted. Whatever I am sending over here as a body, this what I am sending, this is going to be the product object, this one. So now it is empty. So we want to populate this from the text boxes. So whatever changes happens in these text boxes, what should be affected? The product object should be impacted. Now see how I do that. Okay. So this step is done. Now I'm adding the on change event. Which change event? And the value property. This will add to both. Add the on change event plus value attribute to all the 5 text boxes. Okay. So whenever anything changes in this text box, okay, so just follow this step by step, you'll understand. So on change, which function? Handle change. And what is the value of this text box? So what is the title right now? Empty. So what will show in the text box? Empty. If I would write over here apple, so what would show in the text box? Okay, I did not override this method, right? Handle change, I should. So I'll just write it right now. Control S. What happened now? Use state. I'm using use state. I did not import it. Okay. So whatever I am showing in this object is reflecting over here, correct? So this object I want to now populate properly. So now is there anything over here? So what is the value of this text box? The title of the, and if anything changes in this text box, as I type A, what will happen? What will be called? Handle change. And which text box has triggered handle change? That is called as target. That is called as, if I am typing over here A, okay, चेंज कर दिया ना मैंने इसको. If I am typing over here A, तो क्या हो रहा है? तो उसको देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है. On change event. So give this to all. So give this to all of the 5 text boxes. Now see what happens. On change, handle change. Value is from where? Handle change value is from where? Product dot title price है क्या? वैल्यू कहाँ से आ रहा है? Product dot description. Dot image. Now if I have a text, if I have a object
if I have an object, JavaScript object, having a key as test or roll number 18, S name Virat, and if I do like this is let P1 equals to. So if I do P1 dot roll number equals to 19, what will it do? Will it add a new key or will it modify the value of the existing key? Or if I do P1 dot percentage, what will it do? So if I'm using an existing key, it will modify the value, and if I'm giving a new key, it will add a new key. Yes. So this is what I'm going to do over here now. Now this is very crucial. Every event handler function gets what as a property by default? Event property. So if I am typing in this text box, let's say, if I type in this text box, this description, what is the target of the event? This text box. So this should be interesting to us. One liner function, but should be easy to understand. You know, just understand this. Event dot target means what? Handle change I have put for which all text boxes, all text boxes. So whichever text box has done the typing, that is my target. Of that text box, what is coming? Name and value. So if I am typing in the title text box, what is the name and what is the value? Value is empty now. But now if I type over there some value bag, BAG, what is the value? So that name and value I have read where I have done object destructuring. What I've done? This is my target object, no? This is my target object. Of that, I have taken only which all attributes? Name and value. Okay. So it will only take that value, name and value. And now what are we doing? Set product. We are modifying this product object over here. We'll take the previous value, expand the previous value. So what all does it have? Title, price, description, category, images. And then I will add a new key, which is that name. So what is name? So will it add a new key or will it just modify the existing key? With what value? With the value which I have just sent from the change event. So I am just destructuring my existing object and adding them. So irrespective whichever text box clicks, this code will run and will modify my product object. So if you want to check over here, we'll try to console log the product and see what changes it happens in the behind. So let's try over here now. So see, as I type app A, so what is changing? Title is changing. APP. Okay. So what is being modified? So what is the target over here? This text box. This text box value is being taken and name is being taken over here. Whichever text box is being typing, whatever your text box is changing, calling the change event. That text box, what is being copied? Name and value. I am going to set product, taking the previous value of set product. So what is the previous value? This value. Destructure the previous means will turn to single values. Of that, I am adding the name. So what is the name of this text box? Title. So is there key by title? Already there. Just put the value of that. And so here, as I type in this now 300, so what is modified? The object is being modified. Okay. Description.
men's, category or description something else. Shirt, men's, and URL will give some HTTP, blah blah blah. So I've got the object now. Now on submit, what to do? Send this object to the backend API. So first on change, populate the object which you are going to send. Now we will override this code. Okay. Now what to do? Here we will call the Axios and call which API? So once this is done, now take the handle submit, commit the dummy code and write this try catch over there. Okay. So Axios. So as you use Axios, you have to import it. Where have we used Axios yesterday? In products, right? So if you're using Axios, import Axios. Okay. If you're using await, call it from a async context. Now we are going to hit this, right? Which URL? 8087 and what? Products, right? This one, right? Yes or no? I'll copy this and I'll hit this product, right? Okay, now for your API, I'm not using Axios. Now for your API to understand our request, you have to add the config. Did you add the config file? हाँ, ऐड किया ना, ठीक. और कौन से पोर्ट से आ रहा है रिक्वेस्ट अभी हमारा? 5174 से आ रहा है, ठीक है. कॉन्फ़िग ऐड नहीं किया? ओके, मैंने ऐड नहीं किया. सो मेरा जो कॉन्फ़िग फाइल है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है अपनी? 517. So be aware of that. Okay. Okay. Now this is good. So now I am sending my request over here. Post request. Data is as a JSON. And which product am I sending now? Request body. Product मेरा ये जो आ गया, ठीक है. वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो चेक करेंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे? प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली अलर्ट कर देंगे. रिस्पॉन्स अगर ओके आता है तो ऐसे बोलेंगे प्रोडक्ट एडिशन फेल्ड. सिंपल सा फंक्शन लिख दिया और ये एंड पॉइंट हिट करेंगे अभी, ठीक है. सो लेट मी नाउ ऐड सम टेस्ट डेटा. टेस्ट. देखो ऑब्जेक्ट बदल रहा है वापस, है ना, दिख रहा है? हर क्लिक पे ऑब्जेक्ट बदल रहा है. टेस्ट टेस्ट और टेस्ट, ये स्ट्रिंग है ना. और सबमिट रजिस्टर करते हैं. क्या दिखा रहा है? फॉर्म सबमिटेड. और अभी आपके डेटाबेस पे आ जाओ, प्रोडक्ट पे, लास्ट में 21 तो अपन ऐड किए थे ना. ये बैच टू रिएक्ट बैकएंड डीबी है ना. क्या था? फेक स्टोर ना.
वुमेन्स क्लोथिंग ही आ रहा है। रिक्वेस्ट तो चालू है ना? 8087 पे चालू है, राइट? टेस्ट 300, टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग। रजिस्टर पे आ रहा है फॉर्म सबमिटेड। फॉर्म सबमिट कैसे आना चाहिए? ओके, सेव ऑल नहीं किया क्या मैंने? पुराना कोड ही रन कर रहा था मैं। ठीक है, अब रन करते हैं। रजिस्टर में क्या आ रहा है? थोड़ा का एडेड सक्सेस। 21 था लास्ट, 102। ये ऐसा कि जंप मार रहा है ये। हाँ, अब सीक्वेंस फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, but so see that goes in sequence. But okay, but you got the data over here, testing, 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 right? प्राइस आ गया। ये क्या है? ये रेटिंग है ना? ये हम बाद में ऐड कर देंगे। ओके, this when we'll rate the product, we'll add this rating. As of now, we don't have not added. So now if I try to add the sensible data over here, so I'll just populate it from here, right? टाइटल ये है, प्राइस ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, कैटेगरी, और इमेज। And now as I do a register, it says product ID successfully. Let's go and check the product. 102 ऐड हुआ था लास्ट में, 103 ऐड हो गया। यस, एपीआई इज बिंग हिट। ओके, अब इसमें एक और तरीका है ऐड करने का, वैलिडेशंस के साथ। इसके साथ वो आप लोग को दिखाता हूँ। वो काफ़ी अच्छा यूटिलिटी। So for validation, we have two more dependencies, yup and formik. Yup is for regular expression and formik is for pattern matching. For मैचिंग, तो इनको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग मैं बना रहा हूँ रजिस्टर 1। क्या बना रहा हूँ अभी मैं? इसी को भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि इसका बैकअप हमारे पास रहे। रजिस्टर न्यू, क्या बनाया? रजिस्टर
ठीक है, हो गया डिपेंडेंसी ऐड, डिपेंडेंसी ऐड हो गई। अब जो भी उसमें अब इसमें करेंगे, ठीक है। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। एडिट डिपेंडेंसीज, कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए सारे, रोल नंबर आईडी ऑन चेंज, ठीक है। इसमें क्या है, ऑन ब्लर है, क्या है, जैसे ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलेंगे तो क्या इवेंट फायर होगा, ब्लर मतलब लॉस्ट फोकस, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलते क्या इवेंट फायर होगी, कौन सी इवेंट, ऑन ब्लर। तो आप चाहो तो वो भी इवेंट ऐड कर सकते हो कि एज आई लीव फ्रॉम दैट टेक्स्ट बॉक्स व्हाट शुड हैपन। हाँ, फोकस लॉस्ट पे बोलते, फोकस लॉस्ट, तो क्या है वो, तो ऑन ब्लर, तो वो एक एक्स्ट्रा इवेंट ऐड कर दो। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैंने टाइटल के अंदर गलत चीज डाल दी है, और जैसे मैं टाइटल से बाहर आता हूं तो ये तुरंत बोल देगा कि आपका डेटा गलत है, वो सबमिट के लिए वेट नहीं करेगा। ऑन चेंज किसके लिए है, सबमिट करने के लिए, डेटा कब जमा करने के लिए। और वैलिडेशन हम किस पे करेंगे, ऑन, नहीं ऑन ब्लर पे। टेक्स्ट बॉक्स को टाइप करने दो, जैसे मोबाइल मोबाइल नंबर है, तो मैंने टाइप किया 8 डिजिट, जैसे ही मैं टैप करके बाहर निकलूंगा तो बोलेगा कि ये मोबाइल नंबर सही नहीं है। इट विल नॉट वेट फॉर सबमिट बटन टू टेल मी कि मोबाइल नंबर सही नहीं है। कब बोले मोबाइल नंबर, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलूंगा, तो ब्लर मतलब, ठीक है। तो हर एक को क्या देंगे हम लोग, जैसे ऑन चेंज था वैसे ऑन ब्लर, तो क्या फंक्शन कॉल करेंगे, सही है ना। अब ये ब्लू में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन लिखा नहीं, ठीक है। तो क्रिएट द फॉर्म कंपोनेंट, ये आपने बना दिया, सो फार सो गुड। मैंने इसमें फाइल फोटो सब कुछ भी किया है, फाइल को भी आप वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया इनिशियल वैल्यू सबके, ये किससे मैच होना चाहिए, बैकएंड के आपके एंटिटी से, ठीक है, ये हो गया। अब हमको जिससे वैलिडेट करना है तो हम उसका सारा का सारा टेम्पलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसमें ये ही डेटा जाना जाएगा, तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन डॉट जेएस, एक फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो यहां से वो कंपेयर करेगा, जैसे हमने यहां दिया ना वैलिडेशन अपने स्प्रिंग बूट में, रिमेंबर, जो अपने, वी आर गिवन दिस नो, ऑल द वैलिडेशन, इसका ये कॉलम है, इसका ये लेंथ इतना है, नलेबल इतना है, और भी क्या, जैसे हम लोगों ने, which was the validation column which we had given all the validations to, वो तो किया था ना तुम्हारे कॉलम पर जो, कस्टमर को दिया था ना अपने सबको। तो अब वो सारे वैलिडेशन हम लोग डाल देंगे एक फाइल में, कौन से फाइल में, .js क्या, सिर्फ एक जेएस फाइल बना देंगे, ठीक है। तो मेक अ वैलिडेशन डॉट जेएस फाइल, तो ये हम कहाँ बना देंगे इसको, कंपोनेंट्स पेजेस भी नहीं है ये, उसको, तो लेट्स पुट इन द कंपोनेंट्स ओनली, लेट्स पुट इन द कंपोनेंट्स, क्या नाम है, वैलिडेशन डॉट जेएस। अब इसका जो है, इसमें यप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इसमें, इसमें क्या यूज करेंगे, तो फर्स्ट इंपोर्ट स्टार एज यप फ्रॉम यप, तो यप का सब डाउनलोड कर लो, ये आ गया। अब वो यप क्या करेगा अभी, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक्सपोर्ट कर देंगे,
Okay, whatever name we are giving, what registration validation. Okay, and we will import this as a yep object. किसका ऑब्जेक्ट है ये? yep का ऑब्जेक्ट. इट इज अ yep ऑब्जेक्ट. तो राउंड ब्रैकेट में जाएगा. किसमें जाएगा? राउंड ब्रैकेट में दिख रहा है. उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट है. उसके अंदर क्या है एक. अब यहां पर समझते जाओ. देखो ये समझना है. कौन सा एंटिटी के लिए? तो हम हमारे लिए कौन सा ले गए? अपना पहला कौन सा है? स्ट्रिंग है ना. तो हम लोग ये ले लेंगे. हम लोग ये ले लेंगे. कौन सा? टाइटल. किस टाइप का वैल्यू है? क्या जाएगा उसमें? स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड जाएगा. ठीक है. मिनिमम 30, मैक्सिमम 20. ठीक है. और अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? क्या? ठीक है. 3 to 20 कैरेक्टर्स चलेगा. और क्या बोलेंगे इस पर? रिक्वायर्ड क्या लिखा है? एंटर. तो ये एक हो गया टाइटल के लिए. फिर अगला क्या है? प्राइस. प्राइस नंबर वाला है. दिख रहा है ये. ऐसा आप ले सकते हैं. तो ये वो कॉमा आफ्टर द नेक्स्ट वन, राइट. पहला आ गया तो कॉमा दे देंगे. ऑब्जेक्ट है ना ये. तो ये की वैल्यू पर टाइटल अपना की हो गया. अब दूसरा क्या है? प्राइस. उसका यप हो गया. नंबर चाहिए. टाइप एरर. अगर वो नंबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? प्राइस मस्ट बी अ. मिनिमम क्या है? मिनिमम प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. और ये क्या मैक्सिमम क्या बोला है? मैक्सिमम प्राइस इक्वल टू 1 लाख. और रिक्वायर्ड है तो क्या बोलेंगे? इसको ब्लैंक नहीं छोड़ता ना. ब्लैंक नहीं छोड़ सकते ना. तो है ना. फिर क्या बोलेंगे? प्राइस इज मैंडेटरी. करेक्ट. अगला क्या है? प्राइस के बाद वो भी क्या है? टेक्स्ट है. तो ये ले लेंगे. स्ट्रिंग है ए टू जेड. ए टू जेड. और क्या बोल देंगे? 200. एंटर वैलिड डिस्क्रिप्शन विथ 3 to 200 कैरेक्टर्स. और अगर नहीं हो तो क्या बोलेंगे? अगर ये कंपलसरी नहीं रखना है आपको, निकाल दो उसको. बट डिस्क्रिप्शन देना कंपलसरी नहीं है. तो कॉमा यहाँ देना पड़ेगा. सही है. हाँ. ओके. फिर नेक्स्ट क्या है? कैटेगरी. कैटेगरी भी यही है. और कैटेगरी कंपलसरी है. नेक्स्ट क्या है?
इसके आगे कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट में, हाँ, कौन सा? ओके, तो उसमें और भी आएगा ना, ए टू जेड और क्या? ओके, तो इसके लिए हम लोग फिर यूआरएल का ना, तो लेट्स से हो चैट जीपीटी, क्या होगा? यप, फॉर एन इमेज यूआरएल। ठीक है, देखो ऐसा बता रहा हूँ, दिख रहा है? इमेज यप डॉट स्ट्रिंग है, यूआरएल एंटर वैलिड यूआरएल है, मैचेस ये सब बता रहा है वो, डॉट जेपीईजी पीएनजी ये वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो इमेज को ये ले लेते हैं। ठीक है, अरे हाँ क्या ना, ये तुम लोग अपना आर एन डी करते बैठो। छोटा यप, पहला क्या है, डॉट स्ट्रिंग है, एंटर वैलिड यूआरएल है, मैचेस क्या होना चाहिए, जेपीजी पीएनजी। ठीक है, उसके बाद कुछ है क्या? नहीं, ये कॉमा मत दो। और फिर जो कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करो और सेमी कोलन दो। तो यहाँ से किस नाम से हो रहा है एक्सपोर्ट? ये रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन, याद रखना। ठीक है, कहाँ से? वैलिडेशन से। अब कहाँ आ जाओ, अब ये स्टेप भी खत्म हो गया। ठीक है, और ये उसका सी एस एस दिया है, उसने क्या दिया है? सी एस एस दिया है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। ये सी एस एस दिया है, कॉपी कर लो। तो कहाँ जाएगा वो? रजिस्टर न्यू के सी एस एस में है ना। तो उसको क्या कर लो, साथ में क्यों नहीं आया इसके? तो मिस्टेक है क्या स्पेलिंग में? हाँ, अलग स्पेलिंग। रजिस्ट्री हो गया क्या ये? ये रजिस्ट्री हो गया। सही है। हाँ, ये सी एस एस क्या है? रजिस्टर। तो साथ में क्यों नहीं आया? ओके, क्या इंपोर्ट करेंगे अंदर? रजिस्टर। ओके, once the now once yep is done, now we'll use formik over here. What will we use over here now? किधर? अपने रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर में आ गए अभी। तो यहाँ पर क्या क्या लगाएंगे अभी? और यप हो गया ना, यहाँ फॉर्मिक लेंगे। अब फॉर्मिक देखो कैसे काम करता है, और उसको इंपोर्ट कर लो। किसको? इंपोर्ट कर लो किसको? क्या नाम था उसका, ऑब्जेक्ट का? और ये नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, क्या ये नेम्ड एक्सपोर्ट है? तो किसमें आएगा? कर्ली ब्रैकेट में। फ्रॉम वेयर, डॉट डॉट स्लैश का आ गया कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स से कहा आ गया वैलिडेशन डॉट जेएस लिखना है क्या? डॉट
नहीं बस ठीक है ना, बस वो लिख दिया बस। तो ये भी इंपोर्ट हो गया और फॉर्मिक भी आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू in your registration form which you have made over here, you have made this object, okay। तो यहाँ पर एक बना लो, यूज फॉर्मिक हुक, क्या कर लो, वो सारे के सारे वैल्यू बता देगा। देखो ये सिंपल सा एक हुक, उसका ऐड कर लो, यहाँ पर हो गया ना ये, यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। एरर्स, वैल्यूज, टच्ड, ब्लर, हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, सेट फील्ड, ये सब रेड क्यों दिखा रहा है ये, ओके। कॉन्स्ट नहीं किया क्या, कॉन्स्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब ये सब चीजें ये तो बुझी हुई क्यों है, क्योंकि ये यूज में नहीं आया है इसके लिए। हैंडल ब्लर, हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज सब है, सेट फील्ड वैल्यू, इनिशियल वैल्यूज, ये कहाँ से आ रहा है, P1 से ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, P1। वैलिडेशन स्कीमा कहाँ से आ रहा है, रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन से, ठीक है। और इसके अलर्ट पे क्या कॉल होगा, ऑन सबमिट पे क्या कॉल होगा, लेट्स से फंक्शन कॉल होगा कौन सा, फॉर्म सबमिटेड, इसका क्या था वो, एक फंक्शन कॉल हो रहा है इसका, लेट्स से फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या करना है बस, और ये फॉर्म के ऊपर, हाँ हो गया बस। यस वी आर गुड टू गो नो, यस, yeah, I guess we are good to go now. On submit, we are calling this function. On submit, we'll call this function, and that will do this for us. Await है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, async कर देंगे, तो event pass. Okay, let's try to run this and check. Let's try to run this and check how it is behaving. Okay, okay, नीचे भी मैंने फिर okay, then to show the errors, I am writing this errors are under each one. उस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर और उस div के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के बाहर है और उस div के अंदर है। ये क्या था, अगर टाइटल नहीं है, सिर्फ टाइटल लिख दो, show what is this, this is that error message which will show, तो जो नीचे आएगा ना एरर मैसेज, अगर आप वैलिडेशन फॉल्स कर दोगे तो वो ये मैसेज आएगा, यहाँ से मैसेज आएगा। लेट मी शो दैट टू यू, ये किसका है, दिस इज फॉर डिस्क्रिप्शन, राइट।
डिस्क्रिप्शन, so just copy this line and paste it after the text box but inside the div. ये किसके लिए है? Okay, so once we have done, okay, now it should manage everything. Let's save all this. And now where will you route register to? Where will you route register to? रजिस्टर कहाँ जाएगा? रजिस्टर न्यू, सेव ऑल हो गया। चालू तो है ही ना वो। हैंडल चेंज इवेंट किधर गया वो? हैंडल चेंज है, ये क्या हो गया? आइडेंटिफायर हैंडल चेंज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। दो हैंडल चेंज है क्या? ऑन चेंज हैंडल चेंज, हैंडल चेंज यूज फॉर्मिक का है। क्या बोल रहा है? Okay, let's go and check this out, how it works. Which port are we running on? कौन से पोर्ट पे है ये? 5174 पे ही है। रजिस्टर पे गया, यहाँ पर आ गया। ओके, so now let's try to enter। मैं वन एंटर किया, मैंने क्या एंटर किया उसके अंदर? वन एंटर कर रहा हूँ मैं, तो वो ले नहीं रहा है वो। फॉर्मिक काम नहीं कर रहा है। cannot read properties undefined reading title। values for the title। ओके, ऑन चेंज काम नहीं कर रहा है ना। फॉर्मिक से ऑन चेंज निकालना, फॉर्मिक का ऑन चेंज निकालना। एज आई टाइप एप्पल वो ले रहा है, ठीक है, बाहर आ गया।
as I type 400, so let's refresh this. टाइटल आ गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ वन लिखूं, वन, और टैब मारूं, तो क्या बोल रहा है वो उस कैट उसको मिस कर रहा है ना। रिफ्रेश किया, एप्पल लिख दिया उसके अंदर, और बाहर आ गया। अभी क्यों कर रहा है ये? 300 अभी सही है। डिस्क्रिप्शन डाल दिया कुछ भी, टेस्ट, ऑल गुड, मेंस, ऑल गुड। यहाँ पर भी देखो ऑप्शन, देखो एशवाद कैटेगरीज मैंडेटरी बता रहा है, और यूआरएल अगर मैं दे दूं, तो बाहर क्लिक करूं, तो इमेज यूआरएल इज, तो ऐसे फॉर्मिक काम करता है देखो। So when I've given the test, why is it showing mandatory? अभी कहाँ फेल हो रहा है वैलिडेशन? It is not able to read the validations over here. ये जो हैंडल चेंज है, वो फॉर्मिक को दे देंगे, कंट्रोल एस। तो यहाँ इशू करता है वो कि मल्टीपल, it has already been declared। तो ये हैंडल चेंज फॉर्मिक यहाँ से इशू कर रहा है। तो यहाँ पर वो जो हैंडलिंग कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है। ऑन चेंज, हैंडल चेंज। तो इसका हैंडल चेंज कैसा है? ऑन चेंज, तो अपने को अपना हैंडल चेंज लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मिक अपना हैंडल चेंज कर लेगा। तो अपने को अपना हैंडल चेंज फॉर्मिक खुद कर लेगा, अपने को अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये कोड हम कमेंट कर देते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं, या टाइप करने दे रहा है, तो टाइप करने नहीं दे रहा है। तो ऑन चेंज, हैंडल चेंज, तो ऑन चेंज वी आर कॉलिंग हैंडल चेंज। टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, हैंडल चेंज। तो हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, हैंडल ब्लर आर फॉर्मिक मेथड्स। तो फॉर्मिक के मेथड्स है। जो हमने नीचे ऐड किए हैं, ये तो यह फाइल तो हो गई, ये सीएसएस फाइल, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो फॉर्मेट को इंपोर्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर उसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट बना लिए फॉर्मेट के, और ये सब दे दिया। ये सब फॉर्मेट के फंक्शन है, हैंडल चेंज हो सकता, जरूरत नहीं है। वो वही तो है। देखो यहाँ पर तो ये सब फंक्शन हमारे पास है ऑलरेडी। तो कंट्रोल एस, नाउ लेट्स ट्राई टू डू।
register. Initial value is not defined. Initial value is not defined, which is P1. वो कहाँ से आ रहा है? P1 से आ रहा है. लोड हो गया. और अभी वो सेंस नहीं कर रहा है उसको, तो टाइप करने अलाउ नहीं कर रहा है. उसमें कुछ अलाउ नहीं कर रहा है टाइप करने. प्राइस में आ गया मैं, कुछ भी नहीं. Cannot read properties undefined using price. So let's take this formik का code. See where we are struggling with this code. It's a good utility to have. Instead of writing this, it should be like this. हाँ, ओके, ये ना, ठीक है. अभी सेंस नहीं कर रहा है वो. देखते चैट जीपीटी का और क्या था. एरर हैंडलिंग, कॉन्स्ट, ये सब. ऑन चेंज ब्लर, हैंडल, वैल्यूज, टाइटल. करेक्टेड कोड. तो ये पूरा करेक्टेड कोड बता रहा है ये. इसको अप्लाई कर लेते हैं. रजिस्टर न्यू को इससे रिप्लेस कर देते हैं. सेव ऑल, ठीक है. नाउ कम हियर. ओके, देखो आप टाइप करने दे रहा है एप्पल, बाहर आ गया एवरीथिंग गुड. प्राइस 300, एवरीथिंग गुड. डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग गुड. कैटेगरी मेंस एवरीथिंग गुड. इमेज यूआरएल, तो अच्छा वाला अगर यूआरएल ले लेते हैं. तो यहाँ डाल देते हैं रजिस्टर. तो क्या बोल रहा है, फॉर्म सबमिटेड. अब कुछ भी गड़बड़ हो गई, एप्पल में कुछ लिखा नहीं, तो क्या बोल रहा है, प्राइस. अब टाइटल डालना पड़ेगा ना, ABCD. अब बाहर आ गए, कुछ प्रॉब्लम. अब प्राइस डाल दिया. क्या था प्राइस के ऊपर, प्राइस पे क्या लिखा था हम लोगों ने, प्राइस लिखा था 1 से लेके 1 लाख तक, राइट. अब 1 लाख के बाहर चले जाते हैं आप. 999999. मैक्स प्राइस क्या बोल रहा है वो, 1 लाख. ठीक है. इसका डिस्क्रिप्शन में खाली छोड़ के आ जाता हूँ बाहर. हाँ, रिक्वायर्ड नहीं किया था अपन ने, रिक्वायर्ड नहीं किया था, पर अपन ने सो क्या दिया था, 3 से 200, है ना. कितना, 3 से 200. अब सिर्फ TB लिखा बाहर आ गया, तो 3 से 200. TBA कर दिया, बाहर आ गया. मेंस आ गया. ब्लैंक किया तो कैटेगरी इज मैंडेटरी. और इमेज का यूआरएल अगर अपन गलत दे देते, JPG नहीं देते, ABC देते, इसमें चलिए समझ में आ रहा है फॉर्मिक का क्या है. फिर जो डेटा आ जाए फिर सबमिट कर दो पूरा अच्छे से. कौन सा, कौन सा अलर्ट, डेटाबेस में से. हाँ हाँ, कौन, हाँ हाँ. तो ये फॉर्म का अपन को डेटा मिल, ये तो आपसे
अगर अपने को एक्चुअल डेटा पूरा मिल रहा है, टाइटल जो भी है यहाँ से, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो यहाँ पर वो बता देगा ना। तो फ्रंट एंड में क्या करना है तुझे? हाँ, तो ये डेटा लेके अपने को फिर डालना है प्रोडक्ट में और सबमिट में भेज देना। तो ये जो हमने यहाँ, ये जो यहाँ लिखा है ना हमने, हाँ ओके, वो अलर्ट में, तो वो जो अभी अलर्ट किया है ना, उसकी जगह पे अपना फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये जो अलर्ट किया है ना इधर, इसको फंक्शन कॉल कर देंगे, कौन सा वाला? ये फंक्शन लिख देंगे हम लोग, एक फंक्शन यहाँ पर ले लेंगे। तो इसमें रजिस्टर न्यू में है ना, और क्या बोल देंगे इसको? सेव। ओके, तो इसको अभी कॉल कर लेंगे यहाँ। ठीक है, फेल टू ऐड प्रोडक्ट बता रहा है, यानी एपीआई तो हिट हो रहा है। तो क्यों फेल हो गया? लॉग्स पढ़ लो जाके, लॉग्स पढ़ लो, क्यों फेल हो गया? दिस मस्ट बी 6 to, क्यों ऐसा कैसे? ओके, डिस्क्रिप्शन अपना कब फेल हो गया ना, डिस्क्रिप्शन अपना फेल हो गया ना, समझ में आ रहा है? रजिस्टर किया, अब क्या इशू है? अब एक और बता रहा है इशू, 6 to 1,000 कैरेक्टर तो हो गया ना। ओके, टेस्टिंग 1 2 3। अभी क्या है? ओके, इसमें सिर्फ क्या चाहिए? हाँ, A to Z चाहिए सिर्फ। ठीक है, 400, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्टिंग, टेस्टिंग, कैटेगरी मेंस, और यूआरएल ले लेते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब क्यों इशू आ रहा है, फेल क्यों कर रहा है ये? अब बैकएंड एपीआई का इशू आ रहा है, ठीक है, क्या वजह हो रही है वो फेल होने की, वो चेक कर लेंगे। ठीक है, वो इशू चेक कर लेंगे भाई, क्या इशू आ रहा है कि बैकएंड एपीआई फेल हो रहे हैं। ऐड प्रोडक्ट्स 500, टेस्टिंग 400, टेस्टिंग मीन्स फेल टू ऐड प्रोडक्ट। क्यों भाई? ऐड हो गया, रजिस्टर करते हैं, फेल टू ऐड 500 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉग पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी 6 to 1,000, वो तो है ना भाई, वो तो रेंज में है ना, डिस्क्रिप्शन भी फेल हो रहा है। वापस वही इशू कर रहा है, जा नहीं रहा है डिस्क्रिप्शन क्या? एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन को बैकएंड से निकाल देते हैं, शायद वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज रहा है क्या? शायद एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है कि हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन को लगाया ना। शायद वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ से शायद वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज रहा है। लगा एडेड सक्सेस, दिख रहा है एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है?
ये अपना जो हैंडल चेंज है वो ये कर रहा है ना, हैंडल चेंज वो ये वाला, इसका हैंडल चेंज यूज कर रहे थे हम लोग। जो हमारा हैंडल चेंज था वो सेट कर रहा था ना वैल्यूज को। इनको वैल्यूज कौन सेट कर रहा था? जैसे वैल्यूज नहीं, अपना क्या था? प्रोडक्ट ना। वैल्यू क्या था? प्रोडक्ट का टाइटल ना। वैल्यू कहाँ से आ रहा था अपना? प्रोडक्ट से आ रहा था ना। ठीक है, तो फॉर्मिक में प्रोडक्ट पास किया था क्या? फॉर्मिक में क्या पास किया था फिर? वैल्यू पास किया था, फिर क्या पास करना था अपन ने? प्रोडक्ट पास करना। तो ये भी ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो भी कमेंट कर देते हैं अभी। तो सब कुछ फॉर्मिक से ही हो रहा है अभी। क्या? कैनॉट बी रीडिंग टाइटल फॉर अनडिफाइंड। अब ये क्या इशू कर रहा है? अब ये कॉन्स्ट करते हैं तो ये पर इशू आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट से आ रहा है। ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वैल्यू में प्रोडक्ट में। उसके लिए वो वैल्यू है, उसको अगर यहाँ वैल्यू दे देंगे तो इशू आएगा, वापस दो बार सेट होने का। तो वैल्यू कोई जा ही नहीं रहा है, वैल्यूज कोई जा नहीं। ठीक है, इसको ट्रबल शूट करते हैं बाद में। ठीक है, I've done the refactoring of this code. Okay, so this is the values, and then we have given over here value equal to values dot image. Okay, let's save this, and now let's try to hit the API. Okay, so now let's say test 100 rupees, test. So okay, now my register button is activated. Save, product added successfully, and now it adds all the product which I added over here. Okay, if I would miss out on any one of the things, okay, now this is failing, my register button will not work only. My register button will be disabled. See, I'm clicking on it, but it is disabled. It has to pass all the tests. Okay? So this is the final version of our formik.